Today we will discuss about the advantages of the reactive power compensation. The static bar compensation is not done at a line voltage. A bank of transformer step the transmission voltage. Transmission voltage. Hello. Transmission voltage, for example 230 kV, down to much lower level, for example 9.5 kV. They reduce the size and number of the components. They are more reliable, faster in operation, smoother control, and more flexible, can be provided with the help of thyristor. If we are talking about the static bar compensator, it is the more reliable as compared to the bank of inductor and bank of capacitor. They are more reliable, faster in operation, smoother, smoother control, and more flexibility can be provided with the help of thyristor. In a previous lecture, I will discuss about the use of thyristor, how the automatic connection is possible through the thyristor by the firing angle of the thyristor, which is connected to the reactor and capacitor. Now, after that, I will discuss about the structure of STATCOM. STATCOM, basically, the STATCOM is comprised of the power converter, set of coupling reactor, and step-up transformer controller. If we are talking about STATCOM having following component. First is power converter, second is coupling reactor or step-up transformer, or final and controller, along with controller. This is the basic diagram of the STATCOM. This is the generator. This is the load. Here bus is B1 and this bus is B2, and this is the feeder. Feeder is connected B1 and B2, and this is the STATCOM. STATCOM having, this is the pulse width modulation control system. This is the control input, and this is the capacitor. This is the reactor. According to requirement and by control operation, we are used capacitor if required, capacitive compensation. If required, reactive compensation, then this reactor is connected to the transmission system. And now I will discuss about the VI characteristics of the static. हाँ मैम, नहीं नहीं कॉल नहीं किया, तभी कॉल किया था मैम। अच्छा अच्छा, उसमें मैम मैं क्या था, अच्छा हाँ, ये सब्जेक्ट का मैं तो मेल कर दिया हूँ मैम को, लेकिन मुझे उसका टाइम टेबल जो है थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा एक सजेशन चाहिए था कि कैसे पता चलेगा कि मैम का जो है क्लासेस का टाइम टेबल कहाँ से है, क्योंकि मैं उस साइट पे सर्च कर रहा था तो वो मिला नहीं, इस वजह से मैं कॉल कर रहा था मैम। हाँ, तो मैम को मेल तो मैंने कर दिया है, तो उन्होंने मेल में भेजा था कि नहीं आप जो है कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हो, उसका सारा लिस्ट है, उसके आगे क्यों किए हो, वो सारा लिख करके वो तो मैंने मेल कर दिया है। मैं आपको भी भेजा हूँ किसी को। तो अभी अभी मेरा लेक्चर है मैम, तो मैं कुछ देर के बाद में मैं कॉल करता हूँ आपको। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है?
And now this is the comparison of VI characteristics of the static voltage controller and StatCom. This is the graphical representation. In a x-axis we are representing current I. In a y-axis we are representing voltage V, and this is the capacitive compensation, and this is the inductive compensation. This characteristics start from 0 to this point, and inductive characteristics, yeah, inductive compensation, yeah, inductive controlling is start from here to there. If we are talking about the cross section area of this triangle with the StatCom, this is the characteristics of the StatCom. This is the capacitive compensation. This is the inductive compensation, and it start from here and this point, and then rise to along with y-axis, and here from this point to this point the voltage is constant, and this point to this point voltage is constant. Here voltage is increasing from 0 to this point, and same time current is also increases. If we are talking about capacitive compensation, then current is decreases here to here, and then it's become constant. And this is the VI characteristics of the static voltage controller. This is the start from here, and current and voltage, this shows the current and voltage characteristics are linear. In other words, we can say V is directly proportional to I. Similarly, if we are talking about inductive compensation, this is also linear. Here V is directly proportional to I. हेलो अविनाश, सुनाई दे रहा है? यस सर, हाँ सर, सुनाई दे रहा है। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत चीजें? तुम लोग रहते कहाँ पे हो? टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते हो क्लास यार? हाँ? ठीक है. After that, I will discuss about the advantages of the StatCom. There are following advantages of the StatCom. The reactive component used in StatCom are much smaller than those in static VC. The characteristics of StatCom are superior. The output current of StatCom can be controlled up to the rated maximum capacity or inductive range. Reduction of the capacitive semiconductor power converter and capacitor bank to 1/2 of those for the conventional SVC. The better transient response of the order of quarter cycle, reduction of harmonics, filter capacity, reduction of size of high value air cooled reactor, losses, reduction of equipment value and footprint. These are the advantages of the StatCom. ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगर वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, तो StatCom का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है ये सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स है देन SVC से जो है सुपीरियर है हमारा StatCom कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कंट्रोलिंग एरिया को अगर हम चेक करते हैं तो उस केस में जो है इट इज मोर सुपीरियर देन दिस कंपनसेशन टेक्निक. ठीक है ना, सुपीरियर हो गया आपका. एंड आउटपुट करेंट आप अब इसमें जो है कंट्रोलिंग जो है वाइड रेंज में इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके रेटेड मैक्सिमम कैपेसिटिव और मैक्सिमम इंडक्टिव रेंज को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं. सेकेंड जो है सेमीकंडक्टर पावर कन्वर्टर एंड कैपेसिटर बैंक 1/2 ऑफ दोज फॉर कन्वेंशनल. इसमें जो है कंट्रोलिंग जो है हाफ साइकिल के लिए भी बेटर है एज कंपेयर टू द VC. ठीक है.
यहां तक समझ में आया? हेलो? यस सर। ठीक है। अब इसमें जो है एक और फायदा है कि इसमें जो हार्मोनिक्स को फिल्टर करने की कैपेसिटी जो है मोर सुपीरियर देन more superior than static reactive compensation techniques. reactive स्टैटिक रिएक्टिव कंपनसेशन टेक्निक से जो है काफी सुपीरियर सुपीरियर जो है कैपेबिलिटी है हार्मोनिक्स को फिल्टर करने की। ठीक है। रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ हाई वैल्यू एयर कोल्ड रिएक्टर, जो हम रिएक्टर यूज करते हैं एयर कोल्ड जो रिएक्टर करते हैं उसके साइज को जो है इसके इस कंसेप्ट के थ्रू जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ इक्विपमेंट वॉल्यूम एंड फुटप्रिंट को भी जो हम रिड्यूस कर सकते हैं। दीज आर एडवांटेज ऑफ द स्टैटकॉम। ठीक है। नाउ दिस इज द synchronous condenser. In a previous lecture, yeah, many discussion I have already discussed about the synchronous condenser. What is mean by synchronous condenser? अविनाश, पिछली बार synchronous condenser मैंने पूछा था आपसे, क्या होता है? What is mean by synchronous यस सर। condenser? What is mean by synchronous condenser? सर नो लोड कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर को कनेक्ट कर देते हैं। जब उसके फील्ड को ओवर एक्साइटेड करते हैं तो वो एज ए कैपेसिटर वर्क करता है, और जब उसको मतलब रिएक्टिव पावर जब ज्यादा हो जाती है। सर 1 मिनट। सर जब करंट वोल्टेज से लीड करने लगता है उस टाइम पे सर फील्ड को ओवर एक्साइटेड पे रखते हैं, और जब लैग करने लगता है फील्ड को अंडर एक्साइटेशन पे रखते हैं, सिंक्रोनस मोटर के फील्ड को। फिर से बताना, क्या बताया? सर जब हैवी इंडक्टिव लोड होता है तो सर उसके सिंक्रोनस मोटर के फील्ड को ओवर एक्साइटिंग पे रखते हैं। बहुत और वेरी गुड। जब हाँ बताओ। और सर हेलो? जब अंडर यस सर जब लाइट लोड से कनेक्ट होते हैं तो सर उसको फील्ड वाइंडिंग को अंडर एक्साइटिंग पे रखते हैं। वेरी गुड। अब देखो बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंक्रोनस कंडेंसर कुछ नहीं होता है, बस सिंपली जो है हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है नो लोड कंडीशन। ठीक है। पहले क्या हो रहा था, जब स्टैटिक कंपनसेशन जो हम टेक्निक यूज कर रहे थे, सिंपली पहले तो हम बस कंपोनेंट यूज कर रहे थे, या तो कैपेसिटर बैंक यूज कर रहे थे या तो इंडक्टर बैंक यूज कर रहे थे। ठीक है। अलग अलग हम यूज करते थे, तो उसके लिए जो है अलग हमको जो है कैपेसिटर बैंक का रिक्वायरमेंट होता था और अलग जो है रिएक्टर बैंक का रिक्वायरमेंट होता था। ठीक है ना। फिर इसके बाद पहला कन्वेंशनल मेथड जो है हमारा ये था, तो उसमें जो है जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता था, जैसे मान लो कि हेवी इंडक्टिव लोड है तो उसमें कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट कर दिया जाता था मैन्युअली, चाहे जैसे वट एवर प्रोसीजर दैट, बट इट कनेक्टेड टू द ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। अब उसमें दो तरह का कंपनसेशन हो रहा था। एक तो शंट कंपनसेशन यूज हो रहा था, दूसरा जो है सीरीज। तो इन दोनों को जो है सीरीज और शंट की तरह जो है यूज कर सकते थे। अगर सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज कंपनसेशन बोलेंगे, अगर शंट में कनेक्ट है तो शंट कंपनसेशन बोलेंगे। उसमें कैपेसिटर बैंक भी हो सकता है और इंडक्टर बैंक भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है इंडिविजुअली वर्क कर रहे थे। इसके बाद में क्या आया, फैक्ट डिवाइसेज आया, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम आया। तो फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर क्या हुआ कि कनेक्शन के लिए जो है थायरिस्टर यूज होने लगे। ठीक है ना। अगर पैरेलल कंपनसेशन है या शंट कंपनसेशन है तो उसमें जो है अगर मान लो कि हेवी इंडक्टिव लोड कनेक्ट है तो उस केस में जो है थायरिस्टर के थ्रू जो है पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट कर देगा। अगर सपोज जो है कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में लाइट लोड कंडीशन जनरेट हो गया तो उस केस में जो है कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देगा और हेवी इंडक्टर को जो है कनेक्ट कर देगा। ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सिबल ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ये चीज आया गया, उसी को जो है स्टैटिक बार कंपनसेशन भी बोलते हैं। तीसरा कंसेप्ट में जो है सिंक्रोनस मोटर को यूज किया जाने लगा।
तो एक ही मशीन जो है एज ए कैपेसिटर की तरह यूज की जाती है और एक ही मशीन जो है एज ए इंडक्टर की तरह यूज की जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड कंडीशन, अगर ऊपर ओवर एक्साइटेशन कंडीशन है तो उस केस में कैपेसिटर की तरह काम करेगा। अंडर एक्साइटेशन केस है तो उस केस में जो है हमारा इंडक्टर की तरह काम करेगा। तो जैसे सपोज हेवी इंडक्टिव लोड हो गया तो उसमें ओवर एक्साइटेड कर देते हैं, लाइट लोड हो गया तो उसमें अंडर एक्साइटेड कर देते हैं। तो दीज आर द प्रोसीजर by which we are compensating the reactive power of the transmission system. Are you getting my point clearly? Yes, sir. अविनाश? Yes, sir. ठीक है। अब देखो लास्ट जो है कंक्लूजन। For all previous discussion, we can conclude reactive power compensation is a must for improving the performance of the AC system. By reactive power compensation, we can control the power factor and reduce the consumption of the electricity. ठीक है, मतलब कि अगर रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की बात करें तो मस्त ये रिएक्टिव पावर कंपनसेशन जो है ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को जो है इंप्रूव करता है। बाय रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के अंदर जो है पावर फैक्टर को हम इंप्रूव करते हैं और पावर कंजप्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है ना। आप पावर कंजप्शन को जब रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी का कंसेप्ट आ गया। तो इट नीडेड एनीवेयर फ्रॉम एनी सिस्टम। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो अब इसका जो है शॉर्ट नोट बना लो फटाफट आप लोग। ठीक है, एक मिनट। यहां से इसका शॉर्ट नोट फटाफट बनाते जाओ, 3-3 मिनट का टाइम लगेगा, बताते जाना जब हो जाएगा तो। ठीक है।